لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية وسنة النبوية وعصمة الفاطمية وصلح الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباطنية والعلوم الجعفرية والعلوم الخازمية وحجة الوجبية وجماد النقمية ونقامة النقمية وحيبة العسكرية وغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ومن وإبراهيم وآل إبراهيم وعمران وآل عمران على العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی مشہور اور بابرکت کتاب میں اور اس بابرکت کتاب کے بابرکت سورہ مبارکہ یعنی سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و ابراہیم و آل ابراہیم و عمران و آل عمران علی العالمین. بے شک ہم نے انتخاب کر لیا، ہم نے چن لیا آدم اور نوح کو، ان کے بعد ابراہیم و آل ابراہیم کو، پھر اس کے بعد عمران و آل عمران کا انتخاب کیا. کہاں سے؟ علی العالمین، عالمین میں سے انتخاب کیا. عزیزان محترم، مسلسل احتیاج یادگار اشرے کی 5ویں مجلس ہے اور لگاتار ہم مسلسل 4 مجلسیں آپ نے عمران وآل عمران کے تذکرے آپ نے سنے. اسی آیت کے ذیل میں جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت کے ذیل میں آپ نے مسلسل عمران و آل عمران کے حوالے سے ان کے معجزات، ان کے فضائل، ان کی فضیلتیں آپ نے سنی. لیکن اتنا یاد رکھیے کہ فضیلتیں بھی ہیں، کرامتیں بھی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. آل عمران و آل محمد نے کو یہ بھی بتایا ہے کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، اطاعت والدین کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، حسن سلوک کیا ہے، غیبت نہ کرو، جرم خوری نہ کرو. یہ سب ساری باتیں ہیں جو آل عمران نے ہم کو بتایا ہے. اور نیز یہ بھی بتایا ہے کہ لوگوں کی امانت کا بھی خیال رکھنا، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا. اور اہم ترین جو چیزیں بتائی ہیں، جب تک ہو سکے ماں باپ کا خیال رکھنا. کسی نے آ کے ہمارے پہلے ماں حضرت علی علیہ السلام سے کہا مولا یہ بتائیے کہ جب انسان تندرست رہے اس کو کیا کرنا چاہیے، جو
मजबूत रहे जिस्म से, उसको क्या करना चाहिए? तो मौला ने एक ही जुमले में उसको जवाब दे दिया, कहा याद रखो कि अगर इंसान तंदुरुस्त है, जिस्म से मजबूत है, तो उसको चाहिए अल्लाह की इबादत करे और माँ बाप की इताअत करे। अल्लाह की इबादत करे, माँ बाप की इताअत करे। यानी इमाम ने बता दिया कि इबादत खुदा और इताअत वालिदैन है क्या। अगर आप इताअत वालिदैन नहीं करते हैं तो आपके माँ बाप आपसे नाराज़ है। यकीनन इमाम ने कहा कि बदबख्त और बदकिस्मत है वो इंसान की जिसके माँ बाप उससे नाराज़ हो जाए। तो वाकई मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। एक शख्स इमाम की खिदमत में आता है, पहले इमाम की खिदमत में, और आके कहता है कि मौला मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, लेकिन मेरी माँ के पास दौलत बहुत थी और मैं ये चाहता हूँ कि उस दौलत का पता लगाया जाए। तो कहा कि एक सवाल है मेरा, उसका जवाब तुम दो। मौला ने उससे पूछा कि ये बता, वो तेरी माँ थी, तेरी माँ की दौलत है और तेरी माँ की दौलत तुझको ही नहीं पता कि कहाँ है। माँ बाप ऐसा थोड़ी ना होता है कि जाते जाते अपने बेटे को ना बताए। भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो यहाँ पे हैं उनको पता है कि हमारे माँ बाप की प्रॉपर्टी कहाँ है, हमारे माँ बाप का रूम कहाँ है, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे नहीं रहते, गांव में अगर खेती बाड़ी है तो कहाँ पे है, बहुत से लोगों को पता है। मौला ने कहा क्या तुझे पता नहीं है? तो कहा कि नहीं, आपको नहीं पता है। मौला ने कहा कि यकीनन तेरी माँ तुझसे नाराज होके गई है। गौर करिएगा, मौला ने कहा यकीनन तेरी माँ तुझसे नाराज होकर गई है। क्या चाहता है? कहा नहीं मौला, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी है और अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। तो मौला ने कहा ये बता कि कैसे पता कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया है? कहा मैं रोज़ उसकी बारगाह में जाता हूँ और माफ़ी के लिए दुआ मांगता हूँ, बस एक बार मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे और दौलत का पता चल जाए तो मैं जितनी दौलत है उसी के ऊपर खर्च कर दूंगा, यानी सारे सवाब के लिए। मौला ने कहा ठीक है चलो। उसको लेके उसकी माँ की कब्रिस्तान पर आते हो। कौन? मौला, पहले इमाम है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। जरा मुतवज्जे रहिएगा, जरा तवज्जो से सुनिएगा। लेके आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि यही तेरी माँ की कब्र है। जब वो जवान कहता है कि हाँ यही मेरी माँ की कब्र है, मौला उससे कहते हैं, उस कब्र की तरफ मुखातिब होते हैं और कहते हैं कुम बेइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। और उसकी माँ जिंदा हुई और उसने मौला को सलाम किया और सलाम करने के बाद मौला ने कहा कि ये तेरा बेटा है। कहा हाँ मौला मैं इसको पहचानती हूँ। कहा ये तुझसे माफ़ी मांगता है? तो मौला ने उसने कहा कि मौला आपके सामने माफ़ी मांग रहा है तो मैं माफ़ कर रही हूँ। कहा लेकिन एक चीज़ के लिए और आया है, एक चीज़ के लिए और आया है। कहा हाँ मुझे वो भी पता है मौला कि ये मेरी दौलत के लिए आया है, मेरी दौलत के लिए आया। तो कहा इसको अपनी दौलत के बारे में बता दो। कहा नहीं मैं इससे नाराज़ हूँ, मैं अकेली थी, ये मेरा अकलौता बेटा है और कोई औलाद नहीं है मेरे पास, नहीं थी मेरे पास, लेकिन जब तक जिंदा थी मुझसे इससे उम्मीदें थी, मुझे इससे उम्मीदें थी, लेकिन ये मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मतलब क्या है कि इताअत नहीं की, जो माँ कहती थी वो सुनता नहीं था और बेचारी माँ इसी तरीके से कहते कहते वो एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहा कि मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद नारे सलवात।
मीटिंग वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत आती है तो कभी कभी हो जाता है। बहरहाल उसकी माँ ने कहा कि मौला ये मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, मेरी बातों को नहीं सुनता था, मेरी इताअत नहीं करता था, मैं जो कहती थी वो मानता नहीं था। अब ये माफ़ी मांग रहा है, बता दे कि दौलत कहाँ है, अब बता दे कि दौलत कहाँ है। फौरन उसकी माँ ने कहा कि मौला मेरी दौलत मेरे घर के सदर दरवाजे के नीचे है, मेन दरवाज़ा है, ज़मीन खोदिए तो वहाँ पे निकलेगा। मौला ने कहा अच्छा ठीक है तू कहती है तो मैं जाके वहाँ पे देखता हूँ। और फिर ये मसले खुदा थी कि उसकी रूह दोबारा कब्ज़ कर ली गई हुक्म खुदा से, और वो उसी जगह उसी वादी में जहाँ पे लेटी थी मौला के हुक्म से फिर से उसको वहाँ पे दफन कर दिया गया। जिसके बेटे को लेके मौला वहाँ पे आते हैं। अच्छा उसने एक बात और भी बोली थी, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। माँ ने कहा था कि मौला मेरी पूरी दौलत है, आधी आपके हवाले करती हूँ, आधी इसके हवाले करती हूँ, क्योंकि जान गई थी ना कि मेरा बेटा क्या है, लेकिन इस शर्त के साथ इसके हवाले आधी दौलत करती हूँ कि अगर इसके दिल में आले मोहम्मद की विलायत होगी तो इसको दीजिएगा, वरना वो भी आधी दौलत आपके हवाले। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले आए उसको। अब खोदा गया दरवाजे को, जब वो जमीन को खोदा गया दरवाजे के नीचे तो वो दौलत निकली। जवान ने कहा कि मौला आधा आपका है आधा हमारा है। तो मौला ने कहा कि भैया ये जो है हमारे हिस्से में आया इसको बैतुल माल में जमा करवा दो गरीबों के लिए। और ये मंजर देख ही रहा था कि फिर उसने कहा कि मौला ये जो आधा मेरे हक में आया ये भी मेरा नहीं है, ये भी आप ही का है, ये भी आप ही का है। कहा नहीं ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हवाले किया था। कहा मेरी माँ ने मेरे हवाले किया, लेकिन अब मुझे भी मारिफत हो गई है कि इमाम कहते किसे हैं। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। कहा ये भी आपके हवाले है। मौला ने उसको भी बैतुल माल में जमा करवा दिया, इसके लिए गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए। इमाम जानते हैं ना कि यही वो दौलत है जो गरीबों के लिए काम आएगी, बैतुल माल की। वो अलग बात थी कि कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने बैतुल माल की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी, सारे का सारा पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता था, सारे का सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता था। कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता था? सारी तारीखें आपके सामने है। तो लोग परेशान रहते थे कि हमको हमारा हक नहीं मिल रहा है। मौला फिर भी नसीहत करते थे कि देखो गरीबों का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो, मिस्किनों का ख्याल रखो, बेवाओं का ख्याल रखो। बैतुल माल का सारा पैसा उन्हीं के लिए है, ये अमीरों के लिए नहीं है कि जो थैलियाँ भर के लेके जाते हैं। मौला ने बहुत नसीहत की और उनके आखिरी वक्त तक, उनके आखिरी वक्त में मौला ने जाके वसीयत की है, नसीहत की है कि इस तरीके से हुकूमत और खिलाफत नहीं चलती है, जो आपसे मैं दूसरी या तीसरी मजलिस में ये अर्ज भी कर चुका हूँ। बहरहाल इमाम की मारिफत होनी चाहिए। तो यकीनन जो उस ज़माने के लोग थे, जो हासिदीन थे, जो मौला से बुग़्ज़ रखते थे, उसकी वजह यही थी कि मारिफत इमाम नहीं थी उनको। वाक़या में आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। आठवें इमाम का ज़माना है, गालिबन 11वें इमाम का ज़माना है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो भाई हैं, एक का नाम है अब्दुल्ला, एक का नाम है इब्राहिम, लेकिन दोनों में बड़ा फ़र्क है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने का यह वाक़या है। इब्राहिम एक दिन मौला की खिदमत में आते हैं, 11वें इमाम की खिदमत में आते हैं, सलाम करते हैं, मौला जवाब देते हैं। मौला एक सवाल करते हैं, ये बताओ कि तुम्हारे भाई का हाल कैसा है? तो इब्राहिम कहते हैं, यानी अब्दुल्ला के बारे में, क्योंकि अब्दुल्ला बड़े थे, इब्राहिम छोटे थे। कहा तुम्हारे भाई का हाल कैसा है? कहा मौला बस हाल का क्या है, खा पी रहे हैं, तंदुरुस्त हैं। तो मौला ने कहा मैंने तुमसे तुम्हारी भाई की सेहत के बारे में नहीं पूछा है, तुमसे तुम्हारे भाई की सेहत के बारे में नहीं पूछा, उनका हाल क्या है। कहा बोला हाल का क्या करिएगा, वो हमा वक्त हर वक्त मुसल्ले इबादत पर रहते। देखिए इमाम की मारिफत रखने वाले होते कैसे हैं, हमा वक्त हर वक्त वो मुसल्ले इबादत पर रहते हैं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा तो थोड़ा आ गया,
आ जाओ, तुम आओ सवाल पढ़ते हुए। नारा हैदरी, आवाज बुलंद सलवार। जो जहाँ बैठा बैठे रहने दीजिए। क्या हाल का ये है कि वो हमा वक्त मुसल्ले इबादत पर बैठे रहते हैं, तकवा तकवा तकवा, हमा वक्त जो है वो अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, लेकिन वो आपको अपना इमाम तस्लीम नहीं करते। अब्दुल्ला है, इब्राहिम है, 2 भाई हैं, अब्दुल्ला बड़े हैं, इब्राहिम छोटे हैं, लेकिन वो वक्त के इमाम को, हुज्जत खुदा को अपना इमाम तस्लीम नहीं करते। और इब्राहिम जो छोटे वाले भाई हैं वो इमाम को इमाम मानते हैं। तो मौला ने कहा कि जब अपने घर जाना और जाके अपने भाई से एक सवाल करना। कहा कैसा सवाल? कहा अपने भाई से एक सवाल करना कि शबे नहरे बल्ख तुम्हारा तकवा कहाँ चला गया? शबे नहरे बल्ख तुम्हारा, यानी बल्ख एक आबादी के नाम है। शबे नहरे बल्ख यानी वो रात में वहाँ पे अब्दुल्ला गए थे, और किस लिए गए थे इसके आगे हद्दे अदब है। कहा जाके अपने भाई से पूछना कि शबे नहरे बल्ख तुम्हारा तकवा कहाँ चला गया था। इब्राहिम वहाँ से उठे, जरा तवज्जो से, इब्राहिम वहाँ से उठे, अपने भाई अब्दुल्ला के पास आए जो मुसल्ले इबादत पर बैठे हुए थे, और जब उन्होंने नमाज अदा कर ली तो इब्राहिम ने पूछा कि भैया ये बताइए कि आप शबे नहरे बल्ख क्या करने गए थे? आप शबे नहरे बल्ख क्या करने गए थे? जैसे ही अब्दुल्ला ने ये सवाल सुना चौंक गए, परेशान हो गए। कहा ये बताओ तुमको कैसे पता चला कि मैं शबे नहरे बल्ख गया था? कहा ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ, और किसी को पता ही नहीं कि मैं उस वादी में गया था, किस लिए गया था और किस काम के लिए गया था। तुमको कैसे पता चला कि मैं शबे नहरे बल्ख गया था? कहा मैं वहां से आया हूं जिसको तुम अपना इमाम तस्लीम नहीं करते हो। कहा किसने बताया? कहा इमाम हसन अस्करी ने बताया, और उनका सवाल है, वो तुमसे सवाल कर रहे हैं कि तुम शबे नहरे बल्ख क्या करने गए थे। जैसे ही यानी इमाम ने इस सवाल से ज़मीर को झिझोड़ा है, सवाल से ज़मीर को झिझोड़ा है, किसको? अब्दुल्ला के ज़मीर को। जैसे ही अब्दुल्ला को पता चला कि इमाम को भी ये सवाल पता है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह को पता था, वहाँ पे कोई था ही नहीं, ना कोई इंसान था, ना कोई आदमजात था, सिर्फ अब्दुल्ला थे और उस अल्लाह थे। यानी अल्लाह को पता था किसने क्या गुनाह किया, क्या गुनाह नहीं किया है। कहा ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पता था, इनको कैसे पता हुआ? अपने मुसल्ले को समेटते हैं, समेटने के बाद आके मौला के कदमों में गिर जाते हैं। कौन? अब्दुल्ला। और कहते हैं कि मौला मुझे माफ फरमाइएगा, मुझे माफ फरमाइएगा। कहा अब तक क्या हुआ था? कहा नहीं, अब मेरी समझ में आ गया। जुमला आपके हवाले करूं, कहा अब मेरी समझ में आ गया कि लोगों का बनाया हुआ खलीफा और होता है और अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा और होता है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इमाम की मारिफत है। जब मारिफत इमाम हुई है अब्दुल्ला को, वो अपनी जगह से उठे और आके इमाम के कदमों में गिर गए। बोला मुझे माफ़ फरमाइएगा, समझने में देरी हो गई। फिर उनको इमाम की मारिफत होती है। सलवा तौर पर अगर मोहम्मद वाले भाई बुरे जिगर लगा के मजलिस पड़ी जाती है। मैंने पहले भी बोला था कि 70-80% मैं बोलता हूँ कि नीचे से 10-20% सिर्फ आप ही बोल लिया करिए, हूँ वहाँ कर लिया करिए। सलवा लाइव लोग हैं, थोड़ा सा सबूत दिया करिए बेदारी का। बहरहाल ये अपने वक्त के इमाम थे, मौला अली अलैहिस्सलाम अपने वक्त के इमाम हैं। और शायद रसूलुल्लाह की वो हदीस है कि अव्वल मोहम्मद, औसत मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, वकुल मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा औसत भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है, और हम सब के सब मोहम्मद हैं। यानी आप जिस हिसाब से, जिस नज़रिए से, जिस जाविये से देखिएगा, सब के सब मोहम्मद नज़र आएंगे, सब के सब मोहम्मद नज़र आएंगे। चाहे आप इल्म में देखें, हिल्म में देखें, शुजाअत पे देखें, मुसल्ले पर देखें, सब के सब मोहम्मद नज़र आएंगे। और हर वक्त की मोहम्मद ने अपने ज़माने के जालिम को उसी तरीके से जवाब दिया जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने जवाब दिया है। शायद यही वजह थी कि जब मारिफत रखने वाले होते हैं तो वो बुलंदी पर और होते हैं, और उनके पैर ज़मीन पर नहीं होते, फिर और वो उनको बुलंदियाँ आता मिलती है। इसीलिए सलमान को मारिफत से जो 10वें दर्जे पर फाइज थे। अच्छा, कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते हैं और आके कहते हैं कि मौला या अली की हासिदीन थे, या अली
हमने सुना है कि आप जो है जिंदा मुर्दों को जिंदा कर लेते हैं, हमने सुना है आप मुर्दों को जिंदा कर लेते हैं। तो मौला ने कहा इसमें ये कहीं कौन सी नई बात है, ये तो मेरे घर का सलमान भी कर लेता है, ये तो मेरे घर का सलमान भी कर लेता। अब जो आए थे वो परेशान हो गए। अब मौला ने ये कहा ना कि मेरे घर का सलमान भी कर लेता है, तो अब उनको जो है मौला की फिक्र नहीं, मौला के कौल की फिक्र है कि ये कैसे हो सकता है कि सलमान भी मुर्दों को जिंदा करने लगे। अभी तक तो मैं अली के बारे में सुना था, अभी अली के घर पे आए तो अली बोल रहे हैं कि ये तो मेरे घर का सलमान भी कर लेता है। अब तलाश शुरू किसकी, बोलिए भाई, सलमान की तलाश शुरू की। सलमान को पकड़ो और देखते हैं, सलमान का इम्तिहान लेते हैं कि सलमान कैसे जिंदा कर देते हैं मुर्दों को। अब जैसे ही जनाब सलमान मस्जिद नबवी में मिल गए लोगों को, कहा सलमान एक सवाल है तुमसे, मैंने सुना है कि तुम मुर्दों को जिंदा कर लेते हो। एक लम्हे के लिए जनाब सलमान भी रुके, कहा कैसे पता, क्यों कह रहे हो? कहा नहीं, अभी हम अली के दरवाजे पर गए थे और उनसे मैंने कहा कि हमने सुना है कि आप मुर्दों को जिंदा कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं ये कौन सी नई बात है, ये तो मेरे घर का सलमान भी कर लेता है। जैसे ही सलमान ने सुना मुस्कुराने लगे, कहा हाँ, अगर मेरे मौला ने कहा है, अगर मेरे मौला ने कहा है तो जिंदा कर लेता हूँ। सलमान ने वहां पर यह भी कह दिया कि याद रखो, पत्थर की लकीर मिट सकती है लेकिन मेरे मौला का कौल नहीं मिट सकता, मेरे मौला का कौल नहीं मिट सकता। उन लोगों ने कहा चलो फिर जिंदा करके दिखाओ, चलो फिर जिंदा करके दिखाओ। लेकर आते हैं एक ऐसी कब्रिस्तान में कि जो सबसे पुरानी थी, उसमें ईंट वीट भी नहीं थी, गारा मट्टी जो है सब खत्म हो गया था। कहा इस कब्रिस्तान के मुर्दे को जिंदा करो। रिवायत में है कि तारीख में है कि जनाब सलमान ने वहां पर मौला अली को वसीला बनाकर कहा कुम बिस्मिल्लाह, खड़े हो जा अल्लाह के हुक्म से। वो मुर्दा जो है आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ता हुआ जिंदा हो गया। अब सुनिए यहाँ से, अब सुनिए यहाँ से। अब जैसे ही जिंदा हुआ ना तो थोड़ा सलाम दुआ तो करना चाहिए था ना कि भैया तुमको दोबारा जिंदगी मिल गई है। अब जैसे ही जिंदा हुआ तो एक ही सवाल, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। अब जो हासिदीन थे जो साथ में आए थे, कहा सलमान ये क्या बोल रहा है, कहा सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, इसका ऊँट गायब हो गया था। कहा मतलब, कहा तुमको भी आज एक ट्रिक बता देता हूँ और हमेशा उसी रास्ते पर रहना, उसी सिराते मुस्तकीम पर रहना। कहा जब इसका वक्त आखिर था तो इसका ऊँट गायब हो गया था और अपने ऊँट को याद करते करते मर गया। जब जिंदा हुआ तो उसको उसका ऊँट याद आया। यानी सलमान ने उन हासिदीन को, उन हसद करने वालों को बता दिया कि जब तक जिंदा रहना अली अली करते रहना, ताकि दोबारा जिंदा किए जाओ तो अली अली कहते हुए उठो। सलमान पढ़े वर मोहम्मद मारिफत थी 10वें दर्जे पर फायदे 10 दर्जे होते हैं ईमान के ना, ईमान के 10वें दर्जे पर फायज थे। इसीलिए जनाब रसूल खुदा फरमाया करते थे कि सलमान हम अहले बैत में से हैं। तो किरदार इतना बुलंद करिए कि आले मोहम्मद आपको कहे कि हाँ ये हमारा चाहने वाला है, ये हमारा। देखिए जबान से बोल लेना और होता है, किरदार बना के पेश करना और होता है। और आपका किरदार देखा जाएगा, आपकी नीयत देखी जाएगी, आपकी इबादत देखी जाएगी, आपका हुस्न सुलूक देखा जाएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में किया क्या। आले मोहम्मद ने जो रास्ता बताया था, आया हम उस रास्ते पर चले हैं कि नहीं चले। और मौला अली अलैहिस्सलाम चुके तो वो सिलसिला भी लेके आगे बढ़ना है हमको। मौला की हुकूमत है कूफे के अंदर, रोज़ जो है कुछ ना कुछ कोशिश की जाती है। दौलत तो इस तरीके से बहाई गई कि अली को जो है यानी उनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए, कहीं छोटी से छोटी कमज़ोरी हमको मिल जाए और हम अली की हुकूमत को गिरा दें। बड़ी कोशिश की, बड़ी दौलत बहाई गई और न जाने किस तरीके से, न जाने कहाँ से लोगों को भेजा गया कि एक कमज़ोरी लेके आओ। अच्छा, जो चुगलखोर थे, मतलब ये कि जो मौला के मुंह पर कहते थे कि अरे हम तो अली को चाहने वाले हैं, यानी जो मौला के चाहने वाले थे
सहाबी थे, उनके मुंह पे कहते थे कि हम अली के चाहने वाले हैं, और पीठ पीछे जाके कहीं और मिले रहते थे। तो ऐसे लोगों को दुश्मन की भी तलाश नहीं थी, यानी दुश्मन इनको भी रोटी नहीं डालते थे। दुश्मन उसको ढूंढ रहा था कि जो हकीकी अली के चाहने वाले थे, जैसे जनाब अम्मार और कंबर, जनाब सलमान, जनाब मालिक अश्तर, इन लोगों की तलाश में था कि कहीं से इन लोग को अकेले में गिरफ्तार भी कर ले, या कोई ऐसा इल्ज़ाम आयद कर दे हुकूमत के सिलसिले से कि अली की हुकूमत गिर जाए। लेकिन तारीख बताती है कि एक छोटे से छोटी यानी ज़ईफ़ रवायत भी ये नहीं बताती है कि किसी एक हकीकी चाहने वालों को किसी ने ख़रीदा हो। तो उनको पता था कि शिया अली कैसे होते हैं, अली के चाहने वाले कैसे होते हैं। और ये वजह थी कि जब ख़त व किताबत का दौर शुरू था तो एक शामी को बुलाया इसने, अमीर शाम ने, और कहा कि जाओ कोई एक ऐसी कमज़ोरी अली की लेकर आओ जिसकी वजह से हम अली की हुकूमत को गिरा दें और उस कमज़ोरी को चारों तरफ हम फैला दें और उस पर इल्ज़ाम आयद कर देंगे, और फिर तरह तरह की तहमतें फिर बहुताने हमारी तरफ से जारी रहेगी। अच्छा, इंतखाब किया तो किसको? फ़ौजी का नहीं, ऐसे शख्स का इंतखाब किया कि जो हमा वक्त दरबार में ही रहा करता था, नेज़ा लेके खड़ा रहता था। इसको कहते हैं कि दरबारी मुलाजिम। अच्छा, उसके सामने जो बातें होती थी बस वही सुनता था, यानी मौला की बुराई हो रही तो बस वही सुनता था, आले मोहम्मद की बुराई हो रही तो बस वही सुनता था, इनकी अच्छाइयाँ हो रही है तो बस वही सुनता था। वो तो कुछ एक्शन तो ले नहीं सकता था ना, वो तो मामूल किए कि बस नेज़ा लेके खड़े रहो भाई, जो फालतू आदमी आए उसको रोको, जिसके पास परमिशन है उसको अंदर जाने दो, बस यही उसका काम था। तो उसका इंतखाब किया कि जाओ और कोई एक ऐसी कमज़ोरी लेकर आओ। घोड़े पर सवार होना चाहता था कि अमरियास ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं जाना है। कहा फिर कैसे? कहा गरीब बन के जाओ, फ़कीर बन के जाओ, घोड़े पर नहीं ऊँट पर सवार होकर जाओ। यानी मक्कारियाँ देखिए, चालाकियाँ देखिए। और कहा कि सदर दरवाजे से नहीं जाना, किसी पीछे रास्ते से कूफे में दाखिल होना। सदर दरवाजे पे तो ऐसे ऐसे लोग पहरा दे रहे हैं कि जो दूर ही से पहचान जाएंगे कि तुम अली के चाहने वाले नहीं, तुम कूफे के रहने वाले नहीं हो। अब वो चला वहाँ से, उसको खाने पीने को भी नहीं दिया गया, जाके वहीं पे देखना क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इनको ये पता था कि कहीं से अली के चाहने वालों को पता न चले कि ये शाम से जा रहा है। अब ये किसी तरीके से कूफे की सरहद तक आया। गौर से सुनिएगा, किस लिए आ रहा है? कमज़ोरी पता करने के लिए कूफे की सरहद तक आया। जब सरहद तक आया तो दूर से देखा कि मामला बड़ा खतरनाक है। दरवाजे पर ऐसे ऐसे लोग पहरा दे रहे हैं, हर एक की तफ्तीश होती है जो अंदर जाता है। जाने पे मनाही नहीं है, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के साथ अंदर जो है, जो मेन दरवाज़ा होता है कूफे का, वहाँ से जाने दिया जाता है। कहा अगर यहाँ से जाएंगे तो फिर हमसे भी पूछा जाएगा क्यों जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, अगर तिजारत हो तो कौन सा तिजारत है तुम्हारा, किसके घर जा रहे हो, रिश्तेदार कौन है तुम्हारा, सारी बातें हैं। तो इसने पीछे का रास्ता इन तक वो किसी से पूछते हुए गया। अब वो बागात के रास्ते से, यानी जो खजूर के दरख्त थे और भी वहाँ पे किस्मों के दरख्त थे, वहाँ से होता हुआ गुजरा और उसको भूख भी लगी हुई है, करे तो क्या करे। तो दूर से क्या देखता है कि कोई मजदूर है जो मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। वो उसके करीब आ जाता है और आके सलाम करता है। मजदूर भी पहचान लेता है कि ये कौन है, मजदूर भी पहचान लेता है कि कौन है। हाँ भैया कहाँ से आए हो? तो शाम का नाम नहीं लेता है, शाम का नाम वो नहीं लेता। बोलता है कि हम बसरा से आए हुए हैं और हम किसी की तलाश में हैं, कूफे के अंदर वो रहता है, हमको नहीं मालूम कहाँ पे है क्या नहीं है, और हमको कूफे के अंदर जाना था, हम रास्ता भटक गए और इस रास्ते से आ गए और बहुत भूखे हैं, अगर आपके पास कुछ खाने पीने को हो तो दे दीजिए। तो मौला ने जो उनके पास कपड़ा था या रुमाल था, रुमाल में जो भी चीज़ें थी, मौला ने उसके आगे बढ़ा दी। अच्छा देखिए, वो मजदूर नहीं थे, वो हमारे और आपके पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे। लेकिन उस शामी को नहीं पता है कि ये कौन है, उस शामी को नहीं पता है कि ये कौन है। हुकूमत है मौला की, लेकिन मौला देखिए कि कैसे कैसे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और मैसेज भी देते हैं कि हुकूमत अगर साथ में हो तो किस तरीके से हुकूमत की जाती है।
लोगों के दिलों पे किस तरीके से हुकूमत की जाती है। कहा कि भैया जो कुछ इसमें है खा लो। अब उस शामी ने जैसे ही खोला तो देखा कि रोटी है। अब बड़ी कोशिश की लेकिन रोटी का टुकड़ा जो है टूट नहीं रहा है। पहुंच गए आप, मौला किस चीज़ की रोटी खाते थे, बड़ी कोशिश की नहीं टूट रहा है, तो मेहनत करने के बाद वापस उसी रुमाल में रख के और मौला के हवाले कर दिया। मौला ने कहा क्या हुआ, कहा नहीं बड़ी कोशिश की नहीं टूट रही है, ये आप ही का जिगर है कि न जाने आप कैसे खाते हैं, ये आप ही का जिगर है न जाने आप कैसे खाते हैं। तो मौला ने कहा यकीनन तू भूखा है। अभी भी जाहिर नहीं किया कि मैं अली हूँ, और उसको भी नहीं पता है कि यही अली है जिनकी हुकूमत है कूफे में। कहा यकीनन तू बहुत भूखा है। कहा हाँ बहुत भूखे हैं। कहा यहाँ से निकलो, कूफे की गली में जाओ और वहाँ पर जाके पूछा किसी से कि हसन इब्ने अली का घर कहाँ है। अब जैसे ही अली का नाम सुना तो परेशान हो गया। अब कैसे बताए कि मैं उन्हीं के काम के लिए आया हूँ। कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी अदालत बहुत मशहूर है, किसी पर जुल्म नहीं होगा। तुम जाओ पता करो हसन इब्ने अली का घर कहाँ है, और जब उनके घर पे पहुंच जाना तो एक दस्तरखान लगा होगा, और दस्तरखान पर बैठ जाना, जो मन में आए खा लेना, जो मन में आए खा लेना। अब यहाँ पे मैं एक रुक के एक बात बोलता हूँ। मदीने में भी, क्योंकि इस वाक़े को मैंने और भी जगह पे पढ़ा है, लेकिन चूँकि यहाँ पे पहली बार पढ़ रहा हूँ। मदीने में मौलाना थे, मौलाना मोहम्मद अली समरी, जिनके यहाँ रोज़ बातें नमाज मगरिब दस्तरखाने इमाम हसन अलैहिस्सलाम होता है। अब वो नहीं है, उनके बेटे हैं, लेकिन उसी चीज़ को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं कि रोज़ डेली दस्तरखाने इमाम हुसैन बाद नमाज मगरिब होता है। माह रमज़ान में दिन भर रोज़ा रहते हैं तो अफ्तार का भी एहतमाम किया जाता है। यानी ये देखिए कि कितना बड़ा उनको जो है ये मिला है कि दस्तरखाने इमाम हसन अलैहिस्सलाम रोज़, यानी 12 महीने रोज़ करते हैं, बिला नागा करते हैं। तो मौला ने कहा कि जाना हसन इब्ने अली का नाम पूछना, और जो कुछ वहाँ पे होगा खा लेना। वो शामी निकला और पूछते हुए जब वहाँ पे आए तो देखा माशाअल्लाह से जमे गफ़ीर है, लोग खा पी रहे हैं। अच्छा, मौला जो है वो गरीबों के लिए एहतमाम भी करते थे। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खानदान बनी हाशिम के जवान और चाहने वाले सब देखते थे और सबको जो है खिलाते पिलाते थे। वो भी जाके बैठ गया, और जब बैठ गया, जब खाने लगा, जब कुछ देर तक खा लिया तो खाने के बाद फिर वो अपने भाई आप तो ऐसा बैठे हुए कि जैसे लग रहा है कि एकदम सो के उठे। दुश्मनों है कम लोग हैं, लेकिन थोड़ा बेदारी का सबूत तो करिए, जागिए, गफलत में मत रहिए, कम से कम मुस्कुरा दिया करिए। मौला की बात है, मौला की फजीलत बयान हो रही है। एक सलात सलवात पर मोहम्मद वाले अब वो खाने के बाद रखने भी लगा तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ गई। करीब आए, कहा भैया जितना खा सकते हो खाओ, और खाने के बाद जितना ले जा सकते हो ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर खाने और ले जाने का हिसाब नहीं होता है। ये दर आले मोहम्मद करीम इब्ने करीम इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बता दिया, जितना खा सकते हो खाने के बाद जितना ले जा सकते हो लेकर जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने लिए नहीं ले जा रहा हूँ। किसके लिए ले जाना चाह रहा था, अब सुनिए। कहा मैं उस शख्स के लिए लेके जा रहा हूँ कि जो फला बाग में मजदूरी कर रहा है, तो मैं वहाँ से निकला, चूंकि मैंने कहा था ना कि ये दरबारी था, दरबारी मुलाजिम था, इसको नहीं पता था कि अली किस चीज़ का नाम है, बस जितनी बुराई होती थी वही सुनता था, हकीकत तो इसको भी नहीं पता थी। कहा मैं उस मजदूर के लिए लेके जा रहा हूँ जो वहाँ पे मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके पास रोटी है, इतनी सूखी रोटी है, न जाने वो कैसे खा रहा है, मैं उसकी ये लेके जाना चाह रहा हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम समझ गए किसके लिए बात कर रहा है, यानी समझ गए कि मेरे बाबा अली मुर्तज़ा के लिए बात कर रहा है। शायर भी क्या खूब शेर करता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया है, उस जवाब को शायर ने अपने शेर में कहा है कि चलता है दो आलम तो चलाता है वो माली, माली यानी मजदूरी करने वाला, चलता है दो आलम तो चलाता है वो माली, खाता नहीं दुनिया को खिलाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, देता है तो लगता है कि दाता है वो माली। थोड़ा बेदार होकर सुनिएगा कि चलता है दो आलम तो चलाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, खाता नहीं दुनिया को खिलाता है वो माली, देता है तो लगता है कि दाता है वो माली। इमाम हसन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि एहसान की आदत
उसी पैकर से चली है, ये रिस्क है उसका, मैं हसन हूँ वो अली है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले आवाज बुलंद सलवात। जैसे ही उस शामी को पता चला कि अरे ये तो अली का घर है, अली का दरवाजा है, फौरन वहां से उठा, उसी तरीके से आके मौला के कदमों में गिर गया। मौला गुस्ताखी माफ, मुझको फला ने भेजा था कि आपकी कमजोरी पता करूँ, आप कोई कमजोरी मिली तो यकीनन तू लेके जा, अली तुझको रोकेगा नहीं। कहा नहीं मौला, कोई एक छोटी तो कमजोरी आपकी दिखे मुझे, लेकिन यहाँ जहाँ देखो वहाँ सच्चाइयाँ नजर आ रही, वहाँ हकीकत नजर आ रही है। मौला आज मुझे पता चला कि अली किस जात का नाम है, अली किस शख्सियत का नाम है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। ऐसे थे जिसको मारिफत अली हो जाती थी, फिर वो मौला के साथ हो जाता था, वो मौला के साथ हो जाया करता था। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि माता वाला यारी पे मामा ज़मान एक फ़कत बाबर में तक जाहिलिया, यकीनन जो शख्स बगैर मारिफत रखे हुए यानी मर जाए और अपने ज़माने के अमान को मारिफत न रखता हो तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। उस ज़माने के लोग ऐसे थे कि जो मारिफत रखते भी थे, कुछ ऐसे भी थे कि जो मारिफत, और जनाब सलमान फ़ारसी हो गए, अबूज़र हो गए, मिर्दाद हो गए, अम्मार हो गए, कम्बर हो गए, मालिक अश्तर हो गए, मोहम्मद इब्न अबी बकर हो गए। मोहम्मद इब्न अबी बकर कौन है, ये भी जो है आपको सब बयान करना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद इब्न अबी बकर औलाद तो है इनकी, औलाद तो है इनकी, लेकिन परवरिश मौला ने इनकी की, इनकी परवरिश मौला ने की है। और जब आगोशे इमामत में इनकी परवरिश हुई है तो फिर उनकी मारिफत के क्या कहने थे। बहन जो थी जिसने लक़ब पाया था उम्मुल मोमिनीन का, कितनी कोशिश की कि अपने भाई को मौला से छोड़ा के अपने पास लेके आए, जो कि जंग जमल जो होने वाली थी, बड़ी कोशिश की गई थी और बड़े आदमियों को भेजा था, बड़े तरीके से भेजा था, लेकिन मिलने गए हैं मोहम्मद इब्न अबी बकर, मिलने गए, लेकिन किसी तारीख में ये नहीं लिखा कि साथ दिया। बहन के हवाले से मिलने गए हैं, बातें सुनी है, उसका जवाब भी दिया है, लेकिन किसी तारीख में ये नहीं लिखा कि मोहम्मद इब्न अबी बकर ने साथ दिया हो जंग जमल में। जंग जमल में मोहम्मद इब्न अबी बकर किसके साथ थे, मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ थे, क्योंकि परवरिश का नतीजा था कि वो इमाम की मारिफत रखते थे, वो भी जानते थे कि अली और औलाद अली से मोहब्बत रखना कैसा है। और शायद यही वजह थी कि जब इनका काम तमाम हुआ है, इनका काम तमाम हुआ है तो मोहम्मद इब्न अबी बकर भी आगे थे हिफाजत करने में, और वहाँ तक गए थे, इन्होंने भी नसीहत की थी, लेकिन जैसे ही ये वापस आए हैं उसी के बाद किसी ने काम तमाम कर दिया। मोहम्मद इब्न अबी बकर दौड़े भी मदद करने के लिए वो, लेकिन वो जो कूद के आए थे, जो दूसरे के छतों पर से गुजरते हुए उनके घर तक पहुंचे थे, वो जिस रास्ते से आए थे कूद के निकल गए। तो मोहम्मद इब्न अबी बकर ने वहाँ पर खुद कहा था कि यकीनन अगर तुम अली की नसीहतों पर अमल कर लेते तो आज ये तुम्हारा हाल ना होता है। सवाब पड़े पर मोहम्मद वाले फिर वो इल्ज़ाम तराशी और बोहतान भी लगाए गए कि जो आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ था कि हम उन्हें उस्मान का बदला लेंगे, किससे लेंगे, अली से लेंगे। भाई सदा आपकी बुझी, उरूज आपने किया, बीज आपने बोया, आबियारी आपने की, और उसके बाद अब अली से के साथ खुद इनकी जो बेटी थी जो रो रही थी, उसने कहा कि अली पर तो गलत इल्ज़ाम लग रहा है। खलीफा जो थे, खलीफा के कातिल खुद उनके घर में मौजूद है। अगर इंसाफ करने वालों को इंसाफ चाहिए तो खलीफा के कातिल को उनके घर से तलाश करें, उनके घर से गिरफ्तार करें। यानी बेटी ने बहुत दूर तक ये राज फाश कर दिया था कि कत्ल में कौन कौन शामिल था। और सलवात पर मोहम्मद वाले तो
जो भी हो सामने, मौला ने उसको नसीहतों से रोका है, बाज आ जाओ और जो हम कहते हैं उस पर अमल करो। तो यकीनन आले मोहम्मद ने, जब भी मैं बोलता रहता हूँ कि जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ी है इन्होंने हिफाजत की है, बढ़ के हिफाजत की। तो शायद यही वजह थी कि जब वो जंग सिफ़ीन से पहले ख़तों किताबत का दौर चालू था मौला से, और वो कल तिरम्मा वाला भी मैंने वाक़या अर्ज़ किया था कि तिरम्मा अब्दी कैसे लेके गए थे, और उसके बाद फिर कल जो नजूमी का वाक़या था कि किस तरीके से नजूमी को भेजा गया था कि जाके रास्ता रोक दो अली का, क्योंकि उनको पता था कि अगर अली हमारे खिलाफ आ गए और हमसे जंग शुरू हो गई तो फिर कोई हमको बचाने वाला नहीं है। अच्छा, जंग सिफ़ीन एक दिन की जंग का नाम तो है नहीं, जंग सिफ़ीन एक दिन की जंग का नाम तो है नहीं। जंग सिफ़ीन गालिबन 4 महीने 6 महीने लड़ी गई जंग का नाम है, और इसमें अलग अलग लश्कर गए हैं। पहला लश्कर जो गया है वो जनाब मालिक के अश्तर लेके गए, फिर उसके बाद जो है दूसरा लश्कर जो गया है, जो जिन्होंने दावा किया था कि हम अली के साथ हैं, हम अली के साथ हैं, जिसको कहा जाता है खारिजी, जनाब अम्मार के साथ गया। उसके बाद जो कूफे वाला लश्कर था मौला के साथ गया, यानी 3 और 4 गिरोहों में ये लश्कर गया। अच्छा, जब जनाब मालिक अश्तर जा रहे थे तो जो वो नहर फुरात थी जो उसके ऊपर से अबूर करना था, अच्छा वो उन लोग का लश्कर पहले पहुंच गया, और जब पहले पहुंच गया तो वो जो नहर फुरात को पार करने के लिए रखा, जिसको हम पुल बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, छोटी सी बनी थी, उसको उन लोगों ने तोड़ दिया कि अली का लश्कर इधर ना आने पाए। लेकिन वो जनाब मालिक अश्तर से जब करीब पहुंचे तो उन्होंने नज़र दौड़ाई, नज़र दौड़ाने के बाद कहा कि हम अली के चाहने वाले हैं, हम ऐसे ही दाखिल हो जाएंगे। और जो मालिक अश्तर के साथ जो लश्कर गया था सारा लश्कर फुरात से अबूर कर गया, यानी पानी में दाखिल हो के, फुरात में दाखिल हो के उस पार गए। उसके बाद मालिक अश्तर ने अपने लोगों से कहा कि अब इसकी तामीर का काम करो, इसकी तामीर का काम करो। ये जो इन लोगों ने, अशकिया ने या मलाउनों ने या उनके लश्कर वालों ने जो गलती की है इसको फिर से सही करो, चूँकि उनको पता है कि अभी पीछे मौला का भी लश्कर आने वाला है, जनाब अम्मार उससे पहले आने वाले। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले तो उसकी तामीर की गई फिर से, इसकी उस पुल की, उस छोटे से ब्रिज की कि जिससे लश्कर अबूर करता था जंग सिफ़ीन की जाने के लिए, क्योंकि वो रास्ता ही वही था। तो जाते तो कैसे जाते, अगर वो ना होता तो फिर पानी में दाखिल होके जाइए। फिर उसके बाद जब तामीर की गई तो फिर जनाब अम्मार और मौला अली अलैहिस्सलाम उस पुल से अबूर होके वहाँ तक आए। अच्छा, जब वहाँ पर आए तो मौला को जनाब मालिक अश्तर ने एक खबर दी। पहली खबर क्या दी कि मौला, उनके लश्कर वालों ने हम पर पानी बंद कर दिया है। देखिए, पानी बंद करना उनकी पुरानी आदत है, पानी बंद करना उनके घर वालों की पुरानी आदत है। इनका यही हथियार होता है कि सबसे पहले पानी ही बंद कर दो, सबसे पहले पानी ही बंद कर दो। जब खैमे नस्ब हो गए सारे लश्कर वालों के, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के लश्कर के सारे खैमे नस्ब हो गए सिपाहियों के, तो मौला ने कहा कि सबसे पहले जो है पानी आज़ाद करो, पानी आज़ाद करो। तो मालिक अश्तर ने हमला किया है, और हमला करने के बाद पहले ही हमले में फुरात पर कब्जा किया है, और फुरात पर कब्जा करने के बाद फुरात को आज़ाद कर दिया। तो खारजी फिर आए मौला के पास, जो मौला का साथ दे रहे थे, कहने लगे अली हमने कब्जा कर लिया, यानी मालिक अश्तर ने कब्जा कर लिया है, अब हम लोग को चाहिए कि हम लोग फुरात पर कब्जा करके उन पर पानी बंद कर दें, उन पर पानी बंद कर दें। मौला ने कहा खबरदार, पानी किसी पर बंद नहीं होगा, पानी ना हमारे लश्कर वालों पर बंद होगा, पानी ना उनके लश्कर वालों पर बंद होगा, पानी सबके लिए, वो भी पिएंगे हम भी पिएंगे। फिर उसके बाद खारजियों को मामूल किया कि तुम लोग यहाँ पर पहरा दो, और याद रखना किसी को पानी ले जाने पर मजबूर नहीं करना, वो भी पानी लेके जाएंगे, हमारे लश्कर वाले भी पानी लेकर जाएंगे। लेकिन फिर एक साजिश रची गई। वो साजिश क्या रची गई? रियाज की तरफ से, बड़ा मक्कार था, बड़ा चालाक था, कि एक सैलाब आने वाला है। तो जंग सिफ़ीन में बड़ी बड़ी बातें हुई। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले ये अशकिया जो है खंदक खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, और कुआं खोदेंगे तो पानी का सैलाब हमारी तरफ आने वाला है, फिर हम लोग बह जाएंगे, बड़ी दिक्कतें होंगी।
क्या क्या उसमें सारी बातें हुई, क्योंकि ये जो है बात, ये सदा जो है किसी ने फैलाई, जो मक्कार था अपने याद में, और उसको पता था कि अली के लश्कर में कुछ ऐसे कम इल्म वाले भी हैं कि जो इस पे अमल कर लेंगे और अली को मजबूर भी कर देंगे कि हमको बचाओ। तो उसने रात की तारीकी में ढोलक मंगवाई, रात की तारीकी में ढोलक मंगवाई, जिसमें मुख्तार, और ढोलक मंगवा के ढोलक बजाने लगा, धीरे धीरे आवाज़ में। जब धीरे धीरे आवाज़ में ढोलक बजने लगी तो ऐसा लोग समझने लगे कि कुआं खोदा जाने लगा, और वो बैठ के जो है ढोलक बजा रहा था। भाई बड़ा मक्कार था और बहुत बड़ा मदारी भी था। ऐसा बात बड़े पर मोहम्मद वाले तो अब जो इधर मौला के लश्कर में कम इल्म वाले थे, जो सिर्फ जबान से कहते थे कि हम अली के चाहने वाले, हम अली के चाहने वाले, बस आखिरी बात सुनिए उसके बाद रखते मसाइल, हम अली के चाहने वाले हैं। और जब इन्होंने देखा, बल्कि देखा नहीं, जब इनको कुछ आवाज़ महसूस हुई तो जितने कम इल्म वाले थे मौला के साथ, सब ने अपने कान को ज़मीन पे लगा दिया, यानी सब लेट गए और सब सुनने लगे, हाँ ये तो सही बोल रहा था, कुआं खोदा जाने लगा, अभी कुछ देर में पानी का बहाव हमारी तरफ होगा, पानी का रुख हमारी तरफ होगा और बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। क्योंकि उसकी साजिश थी, उसको पता था कि अब हमारा काम हो गया। हुआ ये कि जितने फरात पर बैठे हुए थे सब फिर भाग गए, तो यानी उन लोगों का फिर से कब्जा हो गया। अब दोबारा फिर किसने कब्जा हमला किया है, यानी मौला के लश्कर थे। इंशाअल्लाह ये कर अर्ध होगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले में। भाई 2 बार हमले किए गए हैं फरात पर, और 2 बार उनको भगा के फरात को आज़ाद किया गया। पहली बार जनाब मालिक अशरफ ने किया और दूसरी बार किसने किया, इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करते हैं। बस इतना याद रखिए कि पानी बंद करना इनकी पुरानी फितरत है, चाहे इनके आबा व अजदाद हो, चाहे इनकी आल में से कोई हो। और शायद यही वजह थी कि करबला के मैदान में वो जो वहाँ पे बैठा हुआ था ना, हर बार यही खत लिखता था, हुसैन इब्न अली ने बैत की, मक्का पहुँच गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर खत भेजा, हुसैन इब्न अली ने बैत की, फिर ये जवाब मिलता था कि नहीं। फिर पहुँच आए लश्कर के साथ, फिर खत आया, हुसैन इब्न अली ने बैत की, फिर जवाब जाता था कि नहीं। और ने रास्ता रोका, फिर यह सवाल हुआ कि हुसैन इब्न अली ने बैत की, फिर जवाब जाता था कि नहीं। मौला करबला पहुँचा है, फिर आता था ये खत, एक नामा कि अरे हुसैन इब्न अली ने बैत की, फिर जवाब जाता था कि ना अभी भी हुसैन इब्न अली ने बैत नहीं की है, और फरात के किनारे इनके खैमे लगा दिए गए। कहा खैमे को हटा दिया जाए, शायद हुसैन मजबूर हो जाए। फिर जब मौला ने अपने खैमे हटवाए वहाँ से, और मौला अब्बास जलाल में आ गए थे, उन्होंने तलवार भी निकाल ली थी। फिर उसके बाद एक नामा आया, क्या हुसैन ने बैत की? कहा ना अभी भी हुसैन ने बैत नहीं की। कहा पानी बंद कर दिया जाए, पानी बंद कर दिया जाए। और यही वजह थी कि आले मोहम्मद पर पानी बंद कर दिया गया और खैमों में अलताश की सदाएं बुलंद होने लगी। हर शहीद रात शब आशूर ये सोच रहा था कि कल हम अपने आका पर कुर्बान हो जाएंगे और ऐसी शहादत देंगे कि मेरा मौला भी खुश हो जाएगा। खैमे में जनाब ज़ैनब अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई, जिनको औन मोहम्मद के नाम से याद किया जाता है, और कह रही थी, ए औन मोहम्मद याद रखना कल आशूरा है, कल हर सहाबी, हर चाहने वाला जाएगा, अपने मौला पर कुर्बान हो जाएगा। ए औन मोहम्मद याद रखना, दूध न बख्शूंगी जब तक तुम अपने मामू पर कुर्बान न हो जाओगे। औन मोहम्मद ने कहा, ए मादरे ग्रामी, अरे सुबह तो नमूदार होने दीजिए, हम सबसे पहले जाएंगे और अपने मामू जान पर कुर्बान हो जाएंगे। रिवायत में है कि जनाब ज़ैनब सुबह के वक्त और मोहम्मद को लेके माजाए की खिदमत में आती है। ए भैया हुसैन, बच्चों को इजाज़त दे दीजिए। बच्चों में बहुत जोश है, बहुत हौसला है कि ये जाना चाहते हैं और दाद शजाअत देना चाहते हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और मोहम्मद को देखा और ज़ोरों के तहार गिरिया करने लगे। बुलाया, गले से लगाया, लेकिन जनाब ज़ैनब ने सिफारिश की और मोहम्मद को इजाज़त मिल गई। रिवायत में है कि जब और मोहम्मद घोड़े पर सवार होना चाहते थे तो सवार नहीं हो पाते थे, क्योंकि कद इतना छोटा था। तारीख ने लिखा, रिवायत में है कि औन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवार किया और मोहम्मद को मौला अब्बास ने सवार किया।
اور دونوں بچے آتے ہیں، کیا داد شجاعت دیتے ہیں، ایسی جنگ کرتے ہیں، ایسی جنگ کرتے ہیں کہ عمر سعد ملعون اپنے خیمے سے نکل کر بھاگ جاتا ہے اور دور جا کے کہتا ہے کہ ارے یہ خاندان بنی ہاشم کے بچے ہیں، ان پر ایک ایک کر کے حملہ نہ کرو، ارے ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ لیکن اون و محمد نے ایسی جنگ کی، ایسی داد شجاعت دی کہ لڑتے لڑتے نہر فرات پر آ گئے اور نہر فرات کو پہ آ کے قبضہ کر لیا۔ ایک مرتبہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے، یعنی محمد اون سے کہتے ہیں، اے بھیا اون، ہمارا فرات پر قبضہ ہو گیا ہے، کاش کی سکینہ کی مشکل لے کر آئے ہوتے تو سکینہ کے لیے پانی لے کر جاتے۔ ادھر خیمے میں جناب زینب کے پاس بیبیاں آ گئی، اے شہزادی مبارک ہو، آپ کے بچوں نے فرات پر قبضہ کر لیا۔ ارے جناب زینب سجدے میں گر گئی، اے بابو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں نے پانی پی لیا ہو، ارے اگر میرے بچوں نے پانی پی لیا تو میں مادر گرامی کو کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ پھر عمر سعد نے جب دیکھا کہ فرات پر قبضہ ہو گیا تو جو زمینی فوج کا مالک تھا شمر ملعون، اس کو حکم دیتا ہے کہ چاروں طرف سے اس پر تیروں کی بارش کرو۔ حاضران امام مظلوم کربلا، اب جیسے ہی شمر نے عمر سعد کا حکم پایا، اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کرو۔ ہائے تیروں کی بارش میں اور محمد گھر گئے۔ ارے اب ادھر سے بھی حملے ہو رہے تھے، دائنی طرف سے بھی حملے ہو رہے تھے، بائیں طرف سے بھی حملے ہو رہے تھے، اور محمد گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی، اے مامو جان، ارے ہماری مدد کو پہنچیے۔ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی جناب عباس اور امام حسین نے صدا سنی، فوراً مقتل کی طرف دوڑے۔ اب امام حسین مولا عباس کو آتا دیکھ کر فوج اشکیا دور دور تک چلے گئے، لیکن جب اول محمد کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہائے روح جسم اقدس سے پرواز کر گئی ہے۔ ارے محمد کو امام حسین اور اون کو جناب عباس اٹھا کے خیمے میں لے کے آتے ہیں۔ ہائے بیویوں میں کوہرام برپا ہے، ان بچوں کی میت پر، ان بچوں کی لاش پر بیویاں آتی ہیں، گریہ اوزاری کرتی ہے، ماتم کرتی ہے۔ واہ محمدہ واہ اونا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رزم پہ بزاری آپ کا سلطانی شیخ میں سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید رئیس احمد، مرحوم جان حسن، مرحوم وزیر جانی اصغر علی، مرحوم مولوی تقی رضا، مرحوم سید منظور احمد، مرحوم سید سراج، مرحوم مولانا مصطفیٰ خان، یوسف جانی، میاں جانی، سید نذیر اکبر علی حسن علی، اختر امیر رضوی، مرحوم نازک جہاں حسن علی، شبنم رئیس احمد، چندہ بیگم میاں جانی، نفیس بانو، خنیس فاطمہ میاں جانی، روشن جہاں، روشن آرا مریم، سعیدہ بانو شیخ، مرحوم مولانا اصغر حسین، مرحوم جاوید صادق، مرحوم جاوید جانی پنکی، مرحومہ زرینہ بانو و جملہ مرحومین کی روح کو پڑھ کے حساب کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔